کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ لگایا گیا وہ قادیانی تھا؟ صدر ایوب خان اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے سائنسی ایڈوائزر رہنے والے نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام کتنے پکے ٹھکے قسم کے قادیانی تھے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون کون سے پاکستانی بزنس مین اور ارب پتی سیٹ ہیں جو قادیانی مذہب کے پیروکار ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں میڈیا، شوبز، بیوروکریسی اور فوج پاکستان سمیت دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے مشہور و معروف پاکستانیوں کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ جو قادیانی ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں فائقہ حسین۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ دوستو، مارچ 1889 میں پنجاب کے شہر گرداسپور کے نواں میں قادیان گاؤں سے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ تب سے مرزا غلام احمد کے پیروکار خود کو احمدی مسلم کہلوانے لگے، تو دوسری جانب علماء کرام نے قادیانیت کو غیر اسلام کہتے ہوئے مورچے سنبھال لیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت نے ایک بار پھر سے قادیانی ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ اس دوران فسادات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور لاہور شہر میں پہلی بار مارشل لا تک نافذ کرنا پڑا۔ لیکن پھر 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن آیا کہ جب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ پاکستان شہریت رکھنے والے وہ کون کون سے مشہور لوگ ہیں جو قادیانی ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں، اور پہلے نمبر پر یہ ہیں سر ظفر اللہ خان۔ چودھری ظفر اللہ خان مشہور ڈپلومیٹ، قانون دان اور پاکستانی سیاستدان تھے۔ انگریز سرکار کی جانب سے انہیں سر کا ٹائٹل دیا گیا۔ وہ 1947 تک فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے جج بھی رہے۔ دوستو، سید عطا اللہ شاہ بخاری والی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 1937 کے الیکشن میں سیالکوٹ کے حلقے میں آل انڈیا مسلم لیگ نے سر ظفر اللہ خان کے بھائی چودھری اسد اللہ کو ٹکٹ دیا۔ قادیانی امیدوار کے مقابلے میں عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا، اور پھر رزلٹ آیا تو مجلس ارار کے کینڈیڈیٹ نے الیکشن میں فتح حاصل کی۔ ظفر اللہ خان تاریخ پاکستان میں بھی متحرک تھے، اور جب ملک بنا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں انہیں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ یہی مسٹر ظفر اللہ خان ایوب دور میں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے۔ ظفر اللہ خان کبھی بھی پاکستانی عوام میں مقبول نہیں تھے، اور وہ ہمیشہ متنازع رہے۔ یہی وہ موصوف تھے کہ جن کے حوالے سے ہمارے دیندار حلقے میں یہ واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ تک نہیں پڑھا تھا۔ صحافیوں کے پوچھنے پر ان کا جواب یہ تھا کہ آپ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر۔ چودھری سر ظفر اللہ 1 ستمبر 1985 کو فوت ہوئے، اور ان کی تدفین قادیانیت کے ہیڈ کوارٹر ربوہ میں واقع بہشتی مقبرے میں ہوئی۔ نمبر 2، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام 1926 میں صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ سابق صدر پاکستان ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے سائنٹیفک ایڈوائزر رہنے والے ڈاکٹر عبدالسلام پاکستانی سائنسدان ہیں جن کے سائنسی کمالات کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ سال 1972 میں جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا بطور مشیر سائنس کلیدی کردار تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹر اسلام ایٹم بم بنانے کے مخالف ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک جوہری ہتھیاروں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں کئی روز کی بحث کے بعد جب 7 ستمبر 1974 کے روز آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی نوکری سے ریزائن دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، یا میں فزکس چھوڑ دوں یا پاکستان۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ پاکستان چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام عالمی شہرت کے حامل سائنسدان تو تھے ہی، لیکن وہ ایک کٹر مذہبی ذہن بھی رکھتے تھے۔ وہ مرزا ناصر کے حکم پر 1966 سے لے کر اپنے مرنے تک قادیانی جماعت کے عہدیدار رہے۔ یاد رہے کہ انہیں قادیانی مذہب کے پیروکار فرزند احمدیت کے نام سے پکارتے تھے۔
नंबर 3, डॉक्टर मुजद्दिद अहमद एजाज। डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह उनका कज़न मुजद्दिद अहमद एजाज भी मशहूर साइंटिस्ट था और उन्होंने नए आइसोटोप दरियाफ्त किए। वो बतौर साइंसदान पाकिस्तान के जोहरी तवानाई कमीशन में खिदमात देता रहा, लेकिन 1974 में जब कादियानियों को पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो उसने अमेरिका के लिए रखते सफ़र बांधा और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। मुजद्दिद अहमद एजाज सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। बाद अज़ा वो इटली शिफ्ट हो गए, जहां वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के कायम करदा सेंटर में पढ़ाने लगे। इसके बाद इन्हें अमरीकी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया और अमरीका ही में 1992 में उनका इंतकाल हुआ। नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक। 65 की जंग में दुश्मन भारत को धूल चटाने वाले जनरल अख्तर हुसैन ऑपरेशन ग्रैंड सलाम के कमांडर थे। 65 की पाक भारत जंग में कश्मीर के मार्च पर उन्होंने दुश्मन को मार भगाया और फिर पेश कदमी करते हुए मकबूजा कश्मीर में छम का इलाका भी फतह किया। उनकी पेशा वराना सलाहियतों के सिले में उन्हें हिलाले जुरत से भी नवाजा गया। बाद अज़ा सदर अयूब खान ने अख्तर हुसैन मलिक को सेंटरों में डिप्लॉयड करते हुए तुर्की भेज दिया। जनरल अख्तर तुर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में अपनी सर्विसेज दे रहे थे कि 22 अगस्त 1969 के रोज वो एक कार हादसे का शिकार हो गए। उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया और वो भी रब्बा यानी चिनाब नगर में मदफून है। वाजिया रहे कि अख्तर हुसैन मलिक के भाई लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलिक भी 1965 की जंग में सियालकोट के नजदीक चविंदा के महाज पर अपनी खिदमात देते रहे। नामवर पाकिस्तानी कॉलम निगार वसतुल्लाह खान बताते हैं कि एक वक्त था कि जब कौमी निसाब में 1965 की जंग के चैप्टर में अख्तर हुसैन मलिक की बहादुरी पर मजमून शामिल था, लेकिन फिर बाद में उनका नाम निसाब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो कादियानी थे। नंबर 5, एयर मार्शल जफर चौधरी। जफर चौधरी 19 अगस्त 1926 को सियालकोट में पैदा हुए। 1945 में उन्होंने रॉयल इंडियन एयर फोर्स में कमीशन हासिल किया और क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अहम ओहदों पर अपनी खिदमात दी। जुलाई 1971 से मार्च 1972 तक उन्होंने PIA की सरबराही की। 3 मार्च 1972 को वो पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मुकर्रर हुए और 15 अप्रैल 1974 तक उस ओहदे पर फाइज रहे। एयर मार्शल जफर चौधरी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर भी थे। नंबर 6, मेजर जनरल इफ्तिखार खान जंजुआ। अपने सीने पर हलाले जुर्रत और सितारा पाकिस्तान के मेडल सजाने वाले मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान के लिए खिदमत दी। 1971 की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर में छम के महाज पर हेलीकॉप्टर तबाह होने से उनकी मौत वाक़या हुई। उनके भाई एजाज अहमद खान जंजुआ भी पाकिस्तानी फौज में जनरल के ओहदे पर रहे। डॉन अखबार में द सागा ऑफ जनरल बाजवा के उन्वान से पब्लिश होने वाले जाहिद हुसैन के आर्टिकल के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अहमद हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर हैं। नंबर 7, मिर्जा मुजफ्फर अहमद। कादियान में पैदा होने वाले मिर्जा मुजफ्फर अहमद एक माहिर सफारतकार थे। उन्होंने आज़ादी के बाद सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और अहम पोस्ट पर काम करते रहे। कहा जाता है कि मिर्जा मुजफ्फर पर पाकिस्तान में कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन वो बच निकले। फिर वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गए। यहाँ अमेरिका में ये मौसूफ IMF की कमेटी के रुकन बने, जबकि बाद में उन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाले सिंध तास माहिदे में भी मिर्जा मुजफ्फर अहमद का नाम लिया जाता है। नंबर 8, साबिर जफर। पाकिस्तान के मशहूर शाहिर और नगमा निगार साबिर जफर के लिखे हुए गाने लोगों में बेहद मकबूल हैं। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले साबिर जफर नाजिया हसन, सजाद अली और जुनून बैंड के अलावा पाकिस्तानी ड्रामों के लिए सैकड़ों गाने लिख चुके हैं। उनके मशहूर गानों में ए जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, लाल मेरी पत और डरे डरे नैना समेत कई दीगर शामिल हैं। नंबर 9, आतिफ मियाँ। आतिफ रहमान मियाँ एक पाकिस्तानी नियाद अमरीकी माहिर इक्तिसादियात हैं। उसने दुनिया के बेहतरीन तलीमी अदारे MIT से इकनॉमिक्स में PhD मुकम्मल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाना शुरू किया। आलमी मालियाती अदारे IMF की जानिब से आतिफ मियाँ को दुनिया के टॉप 25 नौजवान इकोनॉमिस्ट में शुमार किया जाता है। आतिफ
आतिफ मियां को पाकिस्तान में शोहरत उस वक्त मिली जब 2018 में इमरान खान ने वजीर आजम पाकिस्तान बनते ही उसे अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन बाद में मजहबी हल्के की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज सामने आया तो इमरान खान ने घुटने टेक दिए और आतिफ मियां को मशावरती काउंसिल से फारिग कर दिया। नंबर 10, मंसूर एजाज। 1961 में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पैदा होने वाले मंसूर एजाज मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से पाकिस्तान में मशहूर हुआ। याद रहे कि मंसूर एजाज डॉक्टर मुजद्दिद अहमद एजाज का बेटा है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूयॉर्क में मुकीम मंसूर एजाज एक अरबपति अमरीकी बिजनेसमैन है। मंसूर एजाज पिछली 2 दहाइयों से अमरीकी खुफिया अदारे CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। वो कई सालों से CNN, फॉक्स न्यूज़ और BBC के अलावा कई दीगर चैनल्स में तज्ज़ियाकार की हैसियत से शरीक होता रहा है। इसके अलावा मंसूर एजाज के कॉलम और मज़ामीन बाकायदगी से फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूज़वीक और टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होते रहते हैं। अपने TV तबसरों और अखबारी मज़ामीन में उसका ख़ास निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और ISI है, जिसके खिलाफ वो पिछली कई दहाइयों से लिख रहा है। नंबर 11, मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कमांडेंट मेजर जनरल अब्दुल्ला सईद सूबा बलोचिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, जबकि जनरल जियाउल हक ने इन्हें मेक्सिको और फिर क्यूबा में पाकिस्तानी सफीर तैनात किया था। मेजर जनरल अब्दुल्ला का ताल्लुक कादियानी मजहब के एक अलग फिरके से था। उनके वालिद डॉक्टर सैयद अहमद खान अहमदी जमात के लाहौरी फिरके के सदर थे। नंबर 12, मिर्जा मसरूर अहमद। इस वक्त कादियानियों का मजहबी रहनुमा मिर्जा मसरूर अहमद है, जिसे उसके मानने वाले खलीफातुल मसीह पंजम कहते हैं। मिर्जा मसरूर अहमद 15 सितंबर 1950 के रोज पाकिस्तान के शहर चिन्नौट के करीब रब्बा में पैदा हुआ। अपनी कॉलेज तक की तालीम रब्बा ही से हासिल की। वाजिया रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से कई सौ एकड़ की जमीन लेकर रब्बा शहर आबाद करके इसे कादियानी मजहब का हेडक्वार्टर बनाया। कादियानी लोग आज भी इस इलाके को रब्बा, जबकि मुसलमान इसे चनाब नगर कहते हैं। ये छोटा सा शहर लाहौर से 170 किलोमीटर के फासले पर दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। कादियानी मजहब के पहले 3 खुलफा हकीम नूरुद्दीन, मिर्जा बशीरुद्दीन और मिर्जा नासिर की कब्रें भी चनाब नगर में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल मोहम्मद जियाउल हक के 30 दिलचस्प हकाइक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। बुशरा बीबी के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे, और इमरान खान फैमिली के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।